जी अस्सलाम वालेकुम students. Today we are going to learn about fabric production, how the fabrics are produced. Weaving is basically the name given to the interlacing of two sets of yarn. Interlacing. You can see here interlacing. Two sets of yarn, warp and weft, at right angles, and the fabric thus formed is woven fabric. The warp yarns are those yarns which lie in the length direction of fabric while it is being woven. We had discussed that there are many ways of fabric production and weaving is widely used method. सबसे ज़्यादा method जो use होता है that is the weaving. अब weaving में basically क्या होता है, there are two sets of yarn. yarns के दो sets use होते हैं and these yarns are interlaced. वो एक के अंदर से दूसरा यार्न गुजारते हैं, इंटरलेस करते हैं. आपने थोड़ा सा जो पेपर वीविंग की है उसमें भी आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे हमारे पास दो सेट्स ऑफ यार्न थे. एक वो जो था जिसको आपने बेस वाइट की फॉर्म में रखा था, दूसरा कलर्ड की फॉर्म में रखा था और कर्ड वाले को आप इंसर्ट कर रहे थे, इंटरलेस कर रहे थे वाइट के अंदर. नाउ जो दो सेट्स ऑफ यार्न्स यूज होते हैं, व्हाट आर दे? They are warp yarns, WARP, warp yarns, and the weft yarns. Warp yarns are those which lies in the length direction of a fabric. जो फैब्रिक की लेंथ वाइज डायरेक्शन में yarns होते हैं उनको हम warp yarns कहते हैं. In case of that paper weave, जो वाइट कलर के यार्न्स थे, जो लेंथ वाइज डायरेक्शन में थे, जो बेसिक थे, वो वॉप यार्न्स थे. द वेफ्ट और द फिलिंग यार्न्स आर दोज विच ड्यूरिंग वीविंग आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द वॉप यार्न्स across the width direction of the fabric. These warps are also known as ends and wefts as picks. फिलिंग या वेफ्ट यार्न्स वो यार्न्स हैं जब वीविंग के दौरान जो हम वॉब यार्न्स के अंदर से गुजारते हैं और ये फैब्रिक की विड्थ, फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो बनाते हैं. वॉब यार्न्स फैब्रिक की लंबाई को डिटरमिन करते हैं और वेफ्ट यार्न्स जो हैं ये फैब्रिक की चौड़ाई को डिटरमिन करते हैं. वॉब यार्न्स को हम एंड्स भी कहते हैं और जो वेफ्ट यार्न्स हैं उनको हम पिक भी बोलते हैं. वेफ्ट यार्न्स के लिए हम दो तीन टर्म्स यूज करते हैं, वेफ्ट, फिलिंग और पिक्स. और वॉप के लिए हम एंड्स और वॉप, ये दो टर्म्स यूज करते हैं. द लेंथ एज ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड सेल्वेज. The lengthwise edge of the fabric is called selvage. Lengthwise direction में फैब्रिक की आपने देखा होगा थोड़ा सा एरिया 1 सेंटीमीटर का या मोर और लेस देन 1 सेंटीमीटर जो थोड़ा सा थिक होता है कंस्ट्रक्शन में और स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्वेज. ये लेंथवाइज डायरेक्शन में होगा और दोनों साइड पे ये रन कर रहा होगा, दोनों साइड्स पे जा रहा होगा, तो इसको हम सेल्वेज बोलते हैं. जिसको आप डोमेस्टिक टर्म में शायद आपने टर्म सुना हो, कन्नी, ये कन्नी वाला है, दैट इज बेसिकली द सेल्वेज. ग्रेन. Grain indicates a direction parallel to either the warp or filling yarn. The direction not parallel to either of these yarns is called off grain. Woven fabric will elongate most in direction that is 45 to both sets of yarn
and this direction is called bias. Now there are few terms which should be properly learned before going towards the new one. Let me write here. Next. जी, यहाँ पे हमने बात की है वॉप यार्न्स की, ठीक है। वॉप यार्न्स को हम क्या कहते हैं, एंड्स भी कहते हैं। और ये कौन से यार्न्स हैं, विच आर इन द ओके, विच आर इन द लेंथवाइज डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक। कौन से हैं ये, लेंथवाइज डायरेक्शन of the fabric. Okay. Next is weft yarns. Those are also called as filling and picks, and these are in the widthwise direction of the fabric. Then there is selvage. Selvage is basically this is a long, say, continuous fabric. Long continuous fabric. The yarns which are here in the lengthwise direction are the warp yarns, and the yarns, there are number of yarns in a fabric. These are the warp yarns, and the yarns which are in the crosswise direction, in this direction, are the weft yarns. Now these two sets of yarns, warp and weft, they intersect each other here, the right angle, the angle of 90. If the warp and the weft yarns, they make the right angle, 90 का एंगल बना रहे हैं, तो फैब्रिक जो है that is on the grain. We will say that the fabric is on the grain, and the fabric will be off grain if this warp and weft yarns do not intersect at the right angle, other than right angle. Maybe ये थोड़ा 95 का हो सकता है, 85 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, तो इसको हम ऑफ ग्रेन कहते हैं। जो ग्रेन के इश्यूज होते हैं फैब्रिक के, ये स्टिचिंग में और उसके बाद ये फिटिंग में जो इफेक्ट करते हैं गारमेंट को, किसी भी गारमेंट को। There was another term that was bias. Bias is when okay. Bias is when the weft yarns, these are the weft yarns, they do not intersect at the right angle and they intersect at the 45 angle. बिल्कुल उसके 45 का एंगल बना रहे हैं। चलें इसको हम यहाँ बना लेते हैं राइट की बजाय, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। I will make it here like this. ठीक है, तो ये वाला जो 45 का एंगल जब बनेगा
तो दीज आर कॉल्ड बायस। अब ये जो बायस की स्ट्राइप्स हैं, इनमें जो स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दिस इज़ द रीज़न कि इन स्ट्राइप्स को जो बायस पे होती हैं, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई शेप देनी हो। से हमने राउंड नेकलाइन बनानी है, तो हम वहाँ पे अगर ये बायस से स्ट्राइप काट के लगाएंगे तो वो कोई भी शेप ले लेगी। इसी तरह से अगर कोई हमारा ड्रेस का ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है, तो वो हम लेंथ वाइज डायरेक्शन में काटने की बजाय उस फैब्रिक को हम अक्रॉस द ग्रेन काटेंगे, उसको हम बायस के ऊपर काटेंगे। ठीक है, सो देयर आर lengthwise yarns, which are the warp yarns or the ends, and widthwise yarns, those are the filling yarns, weft yarns or the picks. And there is the fabric constructed can be on grain or off grain, and it can be produced as biased for more strength or for more flexibility and stretchability. And the thick fabrics, thick yarns which runs along the length of the fabric are called selvage. Okay. Now, what is basically difference between the warp and weft yarns? Most garments are cut in lengthwise direction. Mostly garments are cut in lengthwise direction. जब भी आप कोई भी ड्रेस जो है उसको कट करते हो तो वो आप लेंथ वाइज डायरेक्शन में कट करते हो, क्योंकि लेंथ वाइज डायरेक्शन में जो आपके अक्रॉस द बॉडी, जहाँ पे बॉडी ने बेंड करना होता है, वो वाले पार्ट्स जो हैं वो आपके आते हैं वेफ्ट की डायरेक्शन में, और वेफ्ट की डायरेक्शन में वॉप की निस्बत थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा आती है। दीज आर पैरेलल टू द सेल्वेज। जो वेफ्ट यार्न्स हैं, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि वेफ्ट यार्न्स जो हैं वो सेल्वेज लेंथ वाइज डायरेक्शन में होते हैं, तो वेफ्ट यार्न्स जो हैं वही सेल्वेज बनाते हैं। Yarns are fine in warp-wise direction as they have higher twist, as warps have to go through lots of processing. अभी जो आपने पेपर वीविंग बनाई है, एवरी टाइम आपने जो वॉप यार्न्स थे, जो आपके वाइट वाले थे, उनको ही आपने ऊपर नीचे किया है, बार बार किया है। जब भी आपने फिलिंग यार्न को, कलर्ड वाले को आपने इंसर्ट किया उसके अंदर, उतनी दफ़ा ही वो यार्न को आपने बार बार ऊपर नीचे किया। तो वेफ्ट यार्न्स जो होते हैं ये हमेशा मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द फिलिंग यार्न्स, और इनमें ज़्यादा ट्विस्ट होता है देन द फिलिंग यार्न्स, बिकॉज दे हैव टू गो अंडर ग्रेट स्ट्रेस व्हेन वाइल द प्रोसेसिंग। वीविंग के प्रोसेस के दौरान इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रॉन्गर बनाए जाते हैं। yarns are stronger, filament yarns are referred as warp yarns, हाँ, filamentous yarns are preferred as warps। अभी हमने yarns की टाइप्स में पढ़ा था कि yarns जो हैं स्पन भी हो सकते हैं और फिलामेंट भी हो सकते हैं। तो फिलामेंट yarns जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है फॉर द warps। स्पन भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली प्रीफर जो है वो फिलामेंट yarns को किया जाता है। Twist more and yarns per inch is also more. Ply are preferred for warps। warps के लिए हम जो ply yarns हैं उनको प्रीफर करते हैं। Stretchability is low। warp yarns में stretchability less होती है। Plain yarns are more preferred। Novelty, unique या textured जो yarns हैं वो नहीं यूज़ किए जाते वॉप डायरेक्शन में। वॉप डायरेक्शन में हम सिंपल जो यार्न्स हैं और या प्लेन यार्न्स हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर द वेफ्ट सम गारमेंट्स डिटेल्स सच एज कॉलर्स आर कट इन दिस ग्रेन फॉर डेकोरेशन। समटाइम्स हम ग्रेन पे जो वेफ्ट में भी हम कुछ पार्ट्स को गारमेंट के
या कुछ गारमेंट डिटेल्स को हम कट कर लेते हैं, सच एज कॉलर्स। वेफ्ट आर प्रीपेंडिकुलर टू द सेल्वेज, सेल्वेज के प्रीपेंडिकुलर हैं। सेल्वेज के, अगर सेल्वेज यूं रन कर रही है तो ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, उसकी जो 90 का एंगल उसके साथ बना रहे हैं। Yarns may be thicker or finer with medium twist. Spun yarns are used in the weft direction. Weaker yarns can also be used. Twist and yarn per inch is less. Here for the weft, singles can be used. Ply or singles can be used. But for the warp, ply yarns are preferred. When we compare the stretchability of warp and weft, weft has more stretchability than the warp yarns. Novelty, unique, and textured yarns can be used instead of plain yarns as in the warp yarns. Now coming towards the weaving. Basic weaving operation. The machine which is used for weaving fabric is called a loom. Before weaving yarn intended for warp must pass through such operations as spooling, wrapping, and slashing to prepare them to withstand the strain of the weaving process. These processes do not improve quality of yarn. जिस मशीन पे हम वीविंग करते हैं दैट इज कॉल्ड अ लूम, और yarns को, warp yarns को, not for the weft, this is for the warp, some preparatory steps देने पड़ते हैं, कुछ processes देने पड़ते हैं, preparatory processes. Those are spooling, wrapping and slashing. क्यों हम इनको देते हैं ये preparatory operations? ताकि जब ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस यार्न ने बार बार उन स्ट्रेस और स्ट्रेन से गुजरना है तो वो उनको बियर कर सके। ये जो प्रिपरेटरी हम प्रोसेसेस देते हैं यार्न्स को, ये फैब्रिक की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी को ये इफेक्ट नहीं करेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ हमने इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए फॉर द वीविंग हमने ये प्रिपरेटरी जो हैं वो ऑपरेशंस या मेथड्स दिए हैं। स्पूलिंग. Spooling is yarn is wound on large spools or cones which are placed on a rack called a creel. From this, yarns are wound on bobbin, which is similar to a huge spool. जब हमने yarn making का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि yarn को हम बॉबिन्स के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, फिर बॉबिन से हम उनको अनबाउंड करते हैं और दोबारा हम उनको कोन्स या स्पूल्स के ऊपर जो है वो रैप कर लेते हैं। तो स्पूलिंग में क्या होता है कि यार्न को बड़े बड़े लार्ज स्पूल्स और कोन्स के ऊपर हम बाउंड करते हैं और उसके बाद उन जो स्पूल्स हैं उनको एक बड़े सारे रैक में रख लेते हैं जिसको हम क्रील बोलते हैं, और इससे हम यार्न को यूज़ करते हैं फॉर द रैपिंग ऑफ द बीम और फॉर द रैपिंग ऑफ द लूम। देन इज स्टार्चिंग. जो यार्न्स हैं उनको बॉबिन से जब हम अनबाउंड करते हैं तो उसके बाद उसको हम एक साइजिंग बाथ में से गुजारते हैं, स्टार्च लगाते हैं, स्लैशिंग उसको बोलते हैं। स्टार्च लगाने से स्टिफनेस आ जाती है ना, किसी भी फैब्रिक को देखें एट होम लेवल भी आप जब अपने फैब्रिक को स्टार्चिंग करते हैं तो उससे उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है, उसमें बॉडी आ जाती है। तो इन यार्न्स को में भी स्टिफनेस बॉडी लाने के लिए हम उसमें उसको साइजिंग, स्टार्च देने का जो प्रोसेस है उसको साइजिंग बोलते हैं।
तो ये प्रोसेस जो है स्टार्चिंग या स्लैशिंग हम इसको कहेंगे। और उसमें जो स्लैशर मशीन है वो हर यान को कोट कर देती है स्टार्च के साथ, ताकि वो वीविंग ऑपरेशन के दौरान, वीविंग के प्रोसेस के दौरान ब्रेक ना हो। देन इज द रैपिंग। The sized yarns are then wound on a final warp beam and are ready for the loom. The warp beam prepared now is then mounted on the loom. इसको हम लूम के ऊपर माउंट कर देते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस दिखाती हूँ जो आपका लूम का है। मिनट, हाँ जी, ये देखें। बेसिकली ये हमारे लेंथ वाइज है, ये सारा आ रहा है लेंथ वाइज, ठीक है। यान को हमने स्पूलिंग और स्टार्चिंग या स्लैशिंग और वाइंडिंग के बाद हमने ये यहाँ पे ये वॉप वाले डायरेक्शन में उसको माउंट कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो कैरियर है, दिस इज कॉल्ड द शटल, इसको हम शटल बोलते हैं, ठीक है। ये जो शटल है इसके अंदर फिलिंग यान होता है, यानी ये फिलिंग यान को बार बार राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट यूं बार बार उसको लेके जाती है, कैरी करती है। दिस इज कॉल्ड शटल। ये फिलिंग यान को कैरी करके लेके जाती है ताकि बार बार जो है बगैर तोड़े हुए, हर दफ़ा हम तोड़ते नहीं हैं। पेपर वीव में तो ये था ना कि हमने उतनी स्ट्राइप्स ही काटी थी लेंथ की जिसमें आपका जो है जितना आपकी लेंथ थी, लेकिन थ्रेड में यूँ नहीं होता है। थ्रेड में आपने एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फिलिंग थ्रेड को यूज़ करना होता है, तो वो जिसके थ्रू हम लेके जाते हैं उसको हम शटल बोलते हैं। और ये देखें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको वोवन फैब्रिक नज़र आ रहा है कि ये हमारा फैब्रिक जो है वो वीव हो रहा है, ठीक है जी। इस पिक में भी उसी को मोर एलेबरेट किया हुआ है, वीविंग वाले उसको ही, कि किस तरह से इंटरलेस करते हैं वेफ्ट यार्न को। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शटल्स हैं। आपके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि शटल की जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देखें, इसके इनसाइड है सारा थ्रेड और ये एक रील की फॉर्म में है। ये इसके साथ अलहदा से अटैच हुआ है, इसके ऊपर भी बाउंड हुआ है, इसके ऊपर भी बाउंड हुआ है, इधर से ये पॉइंटेड नीडल की तरह है। तो ये आपकी हमारी जो है ये आपका वॉप थ्रेड्स हैं, ठीक है। इनको ना हम रीड्स बोलते हैं। ये वीविंग प्रोसेस बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको किस तरह से करते हैं। अब हर दफ़ा वॉप को और वेफ्ट को उठाने की बजाय हम वॉप थ्रेड्स जो हमें 1 बाय 1 का बोलते हैं प्लेन को ना, तो एक थ्रेड जो है हम ऊपर कर लेते हैं, एक थ्रेड नीचे कर लेते हैं। तो फिर उसके बीच में से हम ये देखें, ये फिलिंग जो यान है उसको इस शटल ने कैरी किया हुआ है और ये हम एक दफ़ा उधर ले जाएंगे, अगली दफ़ा हम ये नीचे वाले यान्स ऊपर उठा लेंगे, ऊपर वाले यान्स नीचे ले जाएंगे और शटल को इधर ले आएंगे, फिर उधर ले जाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे। ये आपका एक वीविंग में या एक शटल का पर्पस होता है। जो वीविंग प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन क्लास प्लीज आस्क। There is no question, class. बच्चों किधर हो? वो मैम। मैम बेटा जब पूछती हो तो बता तो दिया करो। वो मैम माइक ऑन करते हुए टाइम लग जाता है। क्या करते हुए टाइम लग जाता है? माइक ऑन करते हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नो क्वेश्चन, सब समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। ओके, दैट्स गुड। ठीक है बच्चों, ये मैं लेक्चर्स जो है वो अपलोड भी कर रही हूँ उसके ऊपर, तो आप लोग उधर से भी